हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की वर्कशीट 24 को डिस्कस करते हैं. लेट अस स्टार्ट विद द वर्कशीट इन इंग्लिश. First of all, Gyan asked Jigyasa Didi that how Golgi apparatus look like and what is its function in the cell. So now let us study what is Golgi body and its function. So Golgi body is also a cell organelle present in the cytoplasm of the cell, and it consists of network of membrane bound vesicles which are arranged one top of the other forming cysteines, and these are in contact with endoplasmic reticulum. Now the materials which are synthesized in or near the endoplasmic reticulum, these materials are sent in Golgi body, and there these materials are then stored, modified and packaged, and these are then dispatched into Golgi apparatus from where they are sent in and out of the cell as per the requirement of the cell. Now again Gyan asked Jigyasa that how the cell itself keeps clean, how it removes its own waste material. So now let us study what is the function of Golgi apparatus, and its main function is the formation of the cell organelle which is known as lysosome. Lysosome contains powerful enzymes, and these enzymes are made in rough endoplasmic reticulum, and they are then packaged into lysosome by Golgi apparatus. Now these enzymes, they are capable enough for the breakdown or digestion of all organic material. Lysosomes are also known for the waste disposal system of the cell. They generally digest any foreign material which is present or worn out cell organelles just to keep the cells clean. But sometimes due to the disturbance in the metabolism of the cell, results in the damage of cells, as a result of which the lysosomes burst itself and all the digestive enzymes moves into the cell, thus digesting their own cell. So as a result, lysosome is also known as suicidal bags. Now let us see the functions. Golgi apparatus function is storage, modification, package of substances, conversion of simple sugar to complex, and involved in the formation of lysosomes. And lysosomes, they helps in keeping the cell clean, presence of digestive enzymes, and also known as suicidal bags. Now अब एक बार वर्कशीट को हिंदी में भी देख लेते हैं कि जिज्ञासा दीदी से ज्ञान पूछ रहा है कि गोल्जी उपकरण क्या होती है, कैसे होती है और उसका कार्य क्या है. तो गोल्जी उपकरण भी एक ऐसा कोशिका का अंगक है जो कि झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र होता है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजा हुआ होता है और अंतर्द्रव्य झिल्ली के संपर्क में रहती है. अब अंतर्द्रव्य जालिका के अंदर जो पदार्थ बन रहा है वो पदार्थ गोल्जी उपकरण के अंदर इन पुट्टिकाओं के द्वारा भेज दिया जाता है. अब ये पदार्थ, इनका संचयन, रूपांतरण कहाँ हो रहा है? गोल्जी उपकरण के अंदर. और कोशिका को जब इन पदार्थों की जरूरत होती है तो समय समय पर कोशिका की जरूरत के अनुसार ये पदार्थ अंदर और बाहर कोशिका के भेज दिया जाता है. अब ज्ञान दीदी से पूछ रहा है कि क्या अपने अपशिष्ट पदार्थों का ये निपटान कैसे करते हैं. तो जैसा कि हम वर्कशीट में भी देख रहे हैं कि गोल्जी उपकरण जो है बाकी कार्यों को करने के साथ साथ एक और ऐसे कोशिकांग का निर्माण करता है जो कि एक शक्तिशाली पाचक एंजाइम्स जिनके अंदर उपस्थित होते हैं, और इसको हम कह रहे हैं, इस कोशिकांग को हम कह रहे हैं लाइसोसोम. और इसके अंदर जो शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं वो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा बनाए जाते हैं और गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम्स में पैक कर दिए जाते हैं. अब लाइसोसोम को कोशिका के अपशिष्ट को निपटाने वाला तंत्र भी कहा जाता है. जो भी कोई बाहरी पदार्थ हो या कोई कोशिका का अंगक अगर टूट गया है तो ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को यह पाचित कर कोशिका को साफ करता है.
लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोशिकीय उपापचय के व्यवधान के कारण कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या मृत हो जाती है, जिसके कारण लाइसोसोम फट जाते हैं। और जब लाइसोसोम फटता है तो जो उसके अंदर उपस्थित एंजाइम है वो अपनी ही कोशिका को पचा जाते हैं। इसी कारण लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। अब हम देख रहे हैं कि गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम के कार्य क्या क्या हैं। तो गोल्जी उपकरण पदार्थ का संचयन, रूपांतरण और पैकिंग, सामान्य से जटिल शर्करा का निर्माण करती है और लाइसोसोम का निर्माण भी करती है। दूसरी तरफ लाइसोसोम का क्या काम है? कोशिका को साफ रखना, पाचक एंजाइम की उपस्थिति, और इसको हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं या आत्मघाती थैली। अब प्रश्नों को एक बार देख लें। फर्स्ट है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गोल्जी अपैरेटस इन द सेल? Describe the structure of Golgi body. Why lysosomes are called as suicidal bags? और fourth है, where is the enzyme present in lysosome get prepared? गोल्जी उपकरण का कोशिका में क्या महत्व है? गोल्जी उपकरण की संरचना कैसी होती है? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? और लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम्स कहाँ बनते हैं? अब फर्स्ट टू प्रश्नों का हम आंसर देखते हैं कि गोल्जी उपकरण क्या है। ये एक पतली झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का एक समूह है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर सजी रहती है। और इसका कार्य क्या है? लिपिड बनाने में सहायता करता है और इसके साथ साथ यह स्वभाव से स्रावी होता है, मेलानिन का संश्लेषण करता है। अंतर्द्रव्य जालिका में जो प्रोटीन व लिपिड संग्रहित होते हैं उनका संग्रहण गोल्जी उपकरण में किया जाता है। अब इसके फंक्शंस हम देख लेते हैं इंग्लिश में। इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, इट इज सेक्रेटरी इन नेचर, हेल्प्स इन मेलानिन सिंथेसिस एंड इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में लाइसोसोम्स के बारे में पूछा गया। अब लाइसोसोम्स क्या है? टाइनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं which have powerful digestive enzymes. These lysosomes are absent in RBCs. RBCs में ये अनुपस्थित होते हैं। अब लाइसोसोम्स में जो उपापचयी क्रियाओं के द्वारा कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण लाइसोसोम फट जाते हैं और उसका एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा जाता है। इसलिए लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। So during disturbance in the cellular metabolism, the lysosome bursts itself and all the enzymes moves into the cell and digests its own cell. So these lysosomes are known as suicidal bags. और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि लाइसोसोम में जो एंजाइम्स हैं वो कहाँ बन रहे हैं? तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका में बनते हैं। स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी और इसके साथ साथ इसमें जो हमने क्वेश्चंस देखे हैं और उसके आंसर्स आपको डिटेल में वर्कशीट के लास्ट में आपको आंसर्स जैसे दिख रहे हैं, तो ये आपको क्लियर होंगे। आप इन आंसर्स को करें और साथ साथ लिखने के साथ साथ इसको लर्न भी करना है। सो स्टूडेंट्स, कीप डूइंग दीज वर्कशीट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।